Good afternoon, everyone. Myself, Abhishek Kumar, and today I am going to continue my discussion of mole concept. In the last class, we have already introduced mole, but I received feedback of some of the students who are not directly able to understand mole because they have not studied well the basics in class ninth class where we study chapter atoms and molecules. So they told me that they were very poor in the concepts while studying science in class ninth and 10th. So I decided to make this video especially first of all to cover the basics like what is atomic mass, what is molecular mass, what is an AMU, atomic mass unit. These are all the things that we will discuss. But this class, I will be starting from some laws of chemical combination. So to start with, we will discuss law of conservation of mass. So first of all, I would like to put the heading of today's class, and as always, I suggest all of you to complete the to write on the notebook so that after the class you revise by your lectures, by your class notes. That saves a lot of time. Okay. Anyways, so the topic is mole concept only. So in this class, we'll start off with some laws of chemical combination, and then moving forward we will discuss some basics of mole concept, and then again we will teach you once again what is mole concept, right? So in this manner we will proceed through the lecture. So laws of chemical combination, एक्चुअली में इनका मीनिंग क्या है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का? तो हर एक जो भी क्या बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, तो उनके बारे में बताने के लिए कि एक्चुअली में जो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पे मास किस टाइप से आपका कंजर्व रहेगा, और साथ में जो आपका कंपाउंड फॉर्म होगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनका क्या रेशियो होगा, इस टाइप की कुछ कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बाई स्टडिंग दिस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं. तो जो सबसे पहली हेडिंग बेटा होगी आपकी, जो सबसे फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो यू पुट द हेडिंग लॉ ऑफ conservation of mass. Right. So let me first of all change the view of the page. So I am going to use this rule lines. This is better. The page color, let it be somewhat pink. Okay, now it's fine. So what we are going to study, we are going to study law of conservation of mass. So as the name suggests, if I write a chemical reaction, I'm writing a chemical reaction A plus B, and this forms, when A reacts with B, this forms CLD, right? C plus D. So what this law says that the total mass of the reactants, यहाँ पे reactants क्या है बेटा?
ए और बी क्या है, रिएक्टेंट्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और सी और डी क्या है, प्रोडक्ट जो कि एक्चुअली में एज ए प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो यू नोट डाउन ऑन योर कॉपी द total mass of the reactant will be equal to the total mass of the products, equal to the total mass of the products, ठीक है। यानी कि जो रिएक्टेंट का टोटल मास होगा वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होगा। तो आपको पता है मास जो है कंजर्व रहता है, मास जो है वो आपका चेंज नहीं होगा, जो भी रिएक्टेंट्स होगा उन्हीं के हेल्प से जो कि प्रोडक्ट्स बन रहा है, तो जितना मास आपका रिएक्टेंट का रहा होगा उतना ही टोटल मास रहेगा प्रोडक्ट का। बहुत ही सिंपल है। अगर एक एग्जांपल की हम लोग बात करें, लेट्स टॉक अबाउट द हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। तो सबको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 फॉर्म होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पे अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम लेते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पे 44 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम CO2 बनती है एक्चुअली में, और 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। यहाँ पे 56 ग्राम है, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स 100 ही होगा, और टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है, दैट इज एक ही रिएक्टेंट है तो 100 मास है। तो आई थिंक आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब मूविंग फॉरवर्ड हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो आप लोग भी नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस वाज बेसिकली गिवन बाय द साइंटिस्ट लेवोजियर। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, लेवोजियर। और दिस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दिस वाज गिवन बाय the name of the scientist is Proust। ये सब बच्चे पढ़ते हैं, 9th में ही पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जरूर आपको याद आ रहा होगा एटलीस्ट, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये तो पढ़ ही लेते हैं 9th में। ये आपका NCERT में भी गिवन है, ठीक है। चलिए, सो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है, इसको बड़ा ऐसे समझिएगा, जैसे कि आपका वाटर है, ठीक है। क्या है वाटर, मैं कंप्लीट रिएक्शन लिखता हूँ, आपको समझ आएगा। H2 + O2 इट गिव्स H2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बैलेंस रिएक्शन लिखता हूँ, H2 + O2, तो यहाँ पे 2 होगा और ये 2H2, ठीक है। ये आपकी बैलेंस रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे
कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है। हाँ, तो देखिएगा यहाँ पे मैं मास की बात कर रहा हूँ। तो आपको मालूम है ना बेटा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे H2 का मॉलिक्यूलर मास से मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2H2 है तो आप बोल सकते हैं कि 4 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16। तो O2 का मॉलिक्यूलर वेट आपका निकल के आ जाएगा 32 ग्राम, ठीक है। अब ये कंबाइन होके आपका क्या फॉर्म हो रहा है, 2H2O फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो की, तो हाइड्रोजन कितना है बेटा, 4 ग्राम आपका H2 है और 32 ग्राम O2 है, क्लियर। तो इनका जो रेशियो होगा आप बता सकते हो 4:32, दैट इज 1:8। तो आप बात को समझिएगा बेटा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है। इट सेज दैट in a compound the elements are present in the fixed ratio by mass, ठीक है। आप लोग नोट डाउन करिए। the ratio of the masses present in a compound, ratio of masses of elements present in a compound is always fixed, ठीक है। जो आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे किसी भी कंपाउंड में, तो उनका जो रेशियो होगा वो एक फिक्स्ड रेशियो होगा, ठीक है, कांस्टेंट रेशियो होगा। उनका प्रोपोर्शन क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इस चीज को एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट। यस, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे देखिएगा आपको एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन इज 12 एंड ऑक्सीजन इज हाउ मच, 16 होता है। 16 into 3 आपका 48 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग रेशियो की बात करेंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो, यहाँ पे कितना निकल के आएगा, आई थिंक 4 से डिवाइड होना चाहिए। यस, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 10:3:12, ठीक है। तो ये रेशियो आएगा। अगर सिंपली CO2 की हम बात करें तो यहाँ पे 12:32, या होल नंबर में बात करें तो 3:8। देखो बेटा, कोई भी कंपाउंड आप लोगे तो उसमें जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे। तो उनका जो रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट होगा एलिमेंट्स का, ठीक है। ये बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन व्हिच वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट जिनका नाम था प्राउस्ट, क्लियर। आगे हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो आप लोग भी अपनी कॉपी में लिखेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। आपको चीजें समझ में आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे सारे बेसिक्स हैं केमिस्ट्री के, ये हम लोग कवर कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंडर, जिसको कि मोल कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो सबसे पहले
साइंटिस्ट जिन्होंने इस लॉ को दिया, वेरी वेल नोन साइंटिस्ट, डाल्टन, जॉन डाल्टन। तो ये आप लिखिएगा यहाँ पे, जॉन डाल्टन who actually gave this law of multiple proportion। अभी हम लोग आगे जॉन डाल्टन के जो भी एटॉमिक, उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे एटम्स के बारे में, एटॉमिक थ्योरी जो थी उनकी, तो वो भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देखते हैं, which was given by जॉन डाल्टन। तो एक्चुअली में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है एग्जैक्टली, तो इस चीज को समझिएगा। जैसे कि मैं दो कंपाउंड्स कंसीडर कर रहा हूँ, आप लोग को पता होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज CO और कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे है क्या कि CO, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पे जो रेशियो होगा कार्बन टू ऑक्सीजन का, तो कितना क्या रेशियो होगा, 12:16 होगा, या फिर इसको सिंप्लीफाइड वे में बोल सकते हैं 3:4। ठीक है, ये फिक्स्ड रेशियो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का। यदि मैं CO2 की बात करता हूं तो इसमें कार्बन टू ऑक्सीजन का जो रेशियो निकल के आएगा दैट इज 12:32, क्योंकि ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, और इस प्रकार से जो रेशियो बनेगा वो बनेगा आपका 3:8। क्लियर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो, कार्बन टू ऑक्सीजन कितना निकल के आ रहा है, ये आपका रेशियो निकल के आ रहा है 3:4 का। ठीक है, और CO2 के अंदर क्या रेशियो निकल के आ रहा है, 3:8 का। अब बेटा बात समझिएगा, अगर इन दोनों कंपाउंड्स में यानी कि CO और CO2 में हम बात करें ऑक्सीजन के रेशियो की, ध्यान से देखिएगा जरा, ऑक्सीजन का जो रेशियो है क्या है, 4:8, यानी 1:2 लिख सकते हैं। तो दो कंपाउंड्स हमने लिए जिनमें कि आपका वैसे तो दोनों ही एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सपोज अगर दोनों ना मैच करते तो तब भी एक्चुअली में जो भी कॉमन आपका एलिमेंट है दोनों कंपाउंड्स का, उसमें जो रेशियो है दैट इज ए होल नंबर रेशियो। क्लियर। तो इस चीज को मैं डिफाइन करूंगा, आप लोग भी इसको नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, तो इसको इस टाइप से बोल सकते हैं कि when two elements combine to form two same elements combine to form two different products, right? So the ratio of the masses of the element which is common in both the compounds will possess a whole number ratio. Let me write it first, then I will explain once more time. When पेन ब्लू से ही लिखेंगे हम लोग, when two elements reacts to form two elements reacts to form two different compounds. यहाँ पे लिख सकते हैं when two same elements, ठीक है, when two same elements come reacts to form two different compounds, दो डिफरेंट कंपाउंड बेटा बन रहे हैं यहाँ पे CO और CO2, then the masses, then the ratio of the masses of any element in
the compounds will possess a whole number रेशियो। ठीक है, दो सेम आपके एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन करे हैं, किए हैं, और वहां पे आपके दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन के आ रहे हैं, दो डिफरेंट कंपाउंड्स बन के आ रहे हैं। तो जो मासेस होंगे, है ना, सेम एलिमेंट्स के, उनका रेशियो होगा विद विद द, मतलब जो दो डिफरेंट कंपाउंड्स है उसमें जो सेम एलिमेंट्स है उनका जो रेशियो होगा वो एक होल नंबर रेशियो होता है। इस चीज को चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं बात करूंगा NO एंड NO2 की। ठीक है, NO, एक सेकंड रुकिएगा, यस, NO एंड NO2 दोनों नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, दोनों में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो बेटा, रेशियो की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, 16। तो रेशियो क्या होगा, 7:8। यहाँ पे अगर देखें तो NO2 में नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन 32 होगा, तो रेशियो क्या निकल के आएगा, 7:16। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे क्या रेशियो होगा, दोनों कंपाउंड्स डिफरेंट हैं, बने सेम ही एलिमेंट से बट हैं डिफरेंट कंपाउंड्स। तो इन डिफरेंट कंपाउंड्स में जो कॉमन आपका एलिमेंट है, अगर नाइट्रोजन देखना चाहें तो देख सकते हैं 1:1 है, और ऑक्सीजन का रेशियो मैं लिख रहा हूँ, तो ये होल नंबर रेशियो है। ठीक है, कि अमाउंट डिफरेंट था, तो यहाँ पे रेशियो की बात करी जाए, ये रेशियो हो जाएगा 8:16, यानी कि 1:2। और यही ये बोलता है कि जो दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनमें जो आपका कॉमन एलिमेंट है उसका मास का जो रेशियो होगा वो एक होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है, इसको बुक में कुछ इस टाइप से इन्होंने मेंशन किया है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन with each other to form two or more than two compounds, then the masses of one of the elements which combine with fixed mass of the other bear a simple whole number ratio। ठीक है, इसका भी मतलब यही है कि जो आपका ऊपर एग्जांपल मैंने लिया है CO और CO2 का, तो यहाँ पे एक एलिमेंट आपका कॉमन एलिमेंट कार्बन है, ये आपका कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में, तो जो मासेज इनके कंबाइन हो रहे हैं एक्चुअली में ये एक होल नंबर रेशियो रहेगा इनके मासेज का। आई थिंक दिस मेक सेंस, इट इज फेयर इनफ अबाउट दिस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो वी विल नाउ डिस्कस द गै-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं गै-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं गै-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। तो आपने हेडिंग भी डाल लिया होगा, मुझे पता है, तो मैं भी आपके लिए हेडिंग डाल देता हूँ, आप स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। गै-लुसैक्स, गे, राइट, लुसैक्स लॉ ऑफ, गै-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। This was given by the scientist गै-लुसैक। ठीक है, अभी तक जो हम लोग पढ़े, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन,
तो वहाँ पे जो साइंटिस्ट थे उनके नेम आपके जो भी लॉ था उसमें नहीं आ रहा था उसकी हेडिंग में, लेकिन यहाँ पे आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है किसने दिया था। ये चूंकि गे लुसाइक्स लॉ ऑफ गैसेस वालों है तो बट ऑब्वियस है कि ये गे लुसाइक ने ही दिया होगा और दिया था। तो ये बहुत ही सिंपल आपका लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का। ये बोलता है कि सपोज अगर कोई रिएक्शन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एनी रिएक्शन जो कि गैसियस फेज में हो रही है, आई मीन टू से कि जो भी आपके रिएक्टेंट्स हैं वो गैसियस स्टेट में हैं, तो उनके जो वॉल्यूम्स हैं, ठीक है, वो कंबाइनिंग वॉल्यूम्स जो हैं वो आपका एक होल नंबर रेशियो बियर करेंगे, ठीक है। जैसे कि पहले एग्जांपल से समझिएगा, उसके बाद में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो जैसे कि सपोज नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होंगी बेटा, तो क्या फॉर्म होगा, NH3 यानी अमोनिया गैस फॉर्म होगी, N2 + 3H2 दैट गिव्स 2NH3। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर वॉल्यूम्स के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करें, किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो अगर 1 लीटर आप नाइट्रोजन लेंगे और 3 लीटर आप लेंगे हाइड्रोजन, तो आपका 2 लीटर ये अमोनिया गैस फॉर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा, 1:3 का रेशियो होगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं कि व्हेन two or more gases reacts with each other to form a gas, then the ratio of the volumes of the reacting gases or combining gases will have a whole number ratio. When two or more gases combines या reacts लिख सकते हैं, बेहतर होगा आई थिंक, reacts to form a gaseous product, then the ratio of volumes of reacting gases या combining gases and the produced gas will have a fixed whole number ratio. When two or more gases combines or reacts to form a gaseous product, then the ratio of the volumes of the combining gases and the produced gas will have a fixed whole number ratio, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, गे लुसाइक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, ठीक है, नेम में ही छिपा हुआ है। ये जब गैसेज रिएक्ट हो रही होंगी, गैसेज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। और हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका जो भी आपकी सिंपल अगर बात करें, ए और बी दो गैसेज हैं और वहां से सपोज सी एक न्यू गैस फॉर्म हो रही है, तो जो वॉल्यूम्स का रेशियो होगा ए और बी का, वो और साथ में सी को भी ले सकते हैं, तो ये एक होल नंबर रेशियो होता है, ठीक है। इट मेक सेंस, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो गे लुसाइक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम ये बताता है कि जो उनके वॉल्यूम्स हैं वो होल नंबर में रिएक्ट करेंगे, और अगर प्रोडक्ट के साथ में भी रेशियो ले रहे हैं तो वो एक होल नंबर रेशियो निकल के आएगा। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर ये आपका कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये याद रखिएगा बेटा, टेम्परेचर एंड प्रेशर, these two state variables should be constant, अदरवाइज चीजें जो होंगी वो हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे इस तरह से।
चलिए, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की इस सीरीज में हम लोग सबसे लास्ट जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं अवोगाड्रोस लॉ, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप लोग होपफुली अभी तक जो चीज हमने बताई आपको एक बार आप देख सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एंड देन लास्ट वन इज जो कि अभी देखा लेटेस्ट, दैट इज गै-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। इसमें क्लियर होगा। थोड़ा सा समय देता हूँ आपको, 5 to 10 सेकंड्स का, आप एक बार देखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अवोगाड्रोस लॉ की। ओके, फाइन, पर्याप्त समय आपको मिल गया, आपने देख लिया होगा। इफ यू गेट एनी डाउट then you can post on the comment section, so I will respond as soon as I get the time. So अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग बात करेंगे अवोगाड्रोस लॉ की। You put the heading Avogadro's law. Scientist who gave this law was none other than Avogadro. तो यहाँ पे अवोगाड्रो ने क्या बोला कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस विल हैव इक्वल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इनका एक सिंपल सा लॉ था, आप समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको यह समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, होपफुली बहुत ही आसान है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ all the gases will have equal number of molecules। ठीक है, यहां भी आपको ध्यान रखना होगा, आप लिख सकते हैं प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। जैसे कि मैं बात करूं, हाइड्रोजन combines with chlorine gas to form hydrogen chloride gas। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखना चाहूँ, इस टाइप से लिख सकता हूँ, H2 plus Cl2 it gives 2HCl। ठीक है, ये तो बैलेंस रिएक्शन लिखा। अब बात को समझिएगा, यहाँ पे इसका 1 लीटर और इसका 1 लीटर लेंगे तो इसका 2 लीटर फॉर्म होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि इसका 1 मॉलिक्यूल अगर लेते हैं और Cl2 का भी 1 मॉलिक्यूल लेते हैं तो यू विल गेट द 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। ठीक है, तो आई थिंक आप इस चीज को समझा सकते हैं। इक्वल वॉल्यूम विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 1 लीटर है, या इसको 1 मॉलिक्यूल ले सकते हैं, 1 लीटर इसका है, इसका भी 1 मॉलिक्यूल लिखेंगे, और ये 2 लीटर से तो इसका
2 molecules. एक्सक्यूज मी फॉर दिस मिस्टेक, 2 molecules लिखेंगे यहाँ पे। या फिर इसको और सिंप्लीफाइड वे में अगर लिखना चाहें तो जैसे मैं सपोज इसका हाफ मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ Cl2, then it will produce 1 molecule, right? HCl का सपोज आपसे कोई बोलता है कि 1 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए if we need to make 1 molecule of HCl, then how many molecules of H2 and Cl2 will be required? So it is very clear that half molecule of H2 hydrogen gas and half molecule of Cl2 gas will combine to form 1 molecule of HCl। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। बाकी तो मॉलिक्यूल्स तो आपका होल नंबर में ही रिएक्ट करेंगे, वो हाफ तो होता नहीं है, बट अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बोलेंगे ऐसा कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl के फॉर्मेशन के लिए हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 विल बी रिक्वायर्ड। तो खुशी की बात है कि हम लोगों ने जो भी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उनको कंप्लीट कर लिया है। इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस Dalton's atomic theory, and then we will move on to the mole concept once again with starting with the basics, and then in this sequence we will move forward to complete all the things of the chapter. But as of now we have to stop the video, stop the recording over here. So hopefully you will join the next class with more energy and more knowledge. We will study all these things. So thank you all of you for watching the video.